Good evening, everyone. Today we are going to discuss that what could be the strategy for the remaining time which you have till actually the mains examination starts. So you have roughly around today's 7th, and considering the some of the holidays, the 15 August, mm, maximum you have considered that you have almost 1 month, right? Because you have some more time, but it will be wasted here and there. So now the how you are going to plan the this following time is very important, and as well as how you are going to utilize your resources up till now. That will also hold a key that how you are going to complete the syllabus in due course of time, because many of you will write the examination without even completing whole of the syllabus. So my so my humble suggestion is that this is basically for those who are writing mains, that what could be the strategy for the remaining time, and for the next year, those who are writing mains for CMP 2023. For you, this will be strategy that you should understand that how you will be able to follow such strategy next year. Okay. So first of all, let me tell you that now some of you are writing the test, and many of you have got the mentorship from the various faculties as well as the officers, and some of the papers are pending, which will be done on time. And now the best best suggestion for you is that how you are going to improve upon in your existing knowledge with the help of practice, as well as you have to update your knowledge. That means you have to do the incremental, increase in the your preparation, and that can be done, right, with the time which you have left now. So first of all, those who are writing, make sure you have to do this one thing for sure, that is, in the last 30 days of the examination, which is about to start, and considering that from tomorrow onwards your 30 days are starting, because some of the days will be wasted here and there also. So around 30 days you will be there with you as of now, and these 30 days you have to write, and try writing three questions in 30 minutes, right? And remaining 30 minutes, that means after completing the three questions remaining, that is 30 minutes, you have to read the answers and understand them. I'll tell. First of all, try to understand that you are going to write these questions every day. Make your timetable from either 9 to 12. Next time I won't give you the admission, those who are coming late, because it is actually disturbing. Okay, 9 to 12, that will be the first half of your examination. Next will be 2 p.m. to 5 p.m. This will be the second paper, right, or second half. Okay, so you have two papers, 9 to 12 and 2 to 5. So either you plan any of these timings, either at 9 for those who are getting up early and those who want to write the test, and some questions, practice questions, 9 o'clock, or you plan 2 p.m. Whatever suits you. In fact, if you're not able to plan out these time, don't worry. You plan whatever time you want to plan. ठीक है, इतना भी flexibility है. You plan whatever time you want to plan and write down at least three questions from any test series except mine, because mine you are going to solve it, right? Any test series, any famous test series which have good authentic model answer, right, which you think that they are very good. You write at least three questions from any test series within stipulated time of 30 minutes. That means almost 10. No PYQs, no PYQs मत करो, ठीक है? No. So 30 minutes. I'll tell why not PYQs. At least do three questions 30 minutes. That means almost 10 minutes per question, right? Whether it is 15 marker or 10 marker, okay, no problem. You just fix this time and try to solve three questions from the topics which you have done. Topics
or subjects. That means if you completed modern India, you try finding one of the test series, write down the three questions of that modern India appeared in the sectional test of that test series, or you go through some other maybe by chance you have done geography, to open the geography test series of geography test paper of any test series, sectional test series, and just write down the top three or whatever three questions you know, right? Just write them within 30 minutes, and remaining 30 minutes, just check the answers, check the model answers of that test series, check the model answers of that test series, and okay, and evaluate yourself. That means it's self evaluation, right? You have to do it every day in whatever time you are choosing, preferably 9 to 12, between starting from 9 or 2 to 5. Basically you start this from the sharp 9 or sharp 2 p.m. because in the examination also you will be doing in this timing only. So in the beginning only you will be having little bit resistant, but when you are doing it every day and exactly in the examination, so in the initial examination also there will not be any resistant on your part to write the first answer, because you are doing it practice, you are doing practice every day. And the psychology concept of context effect will be there, that every day you are doing it at the same timing. That is why on the day of examination you are doing on the at the same timing. Okay, so check the model answer, evaluate yourself. You can give yourself marks also depending on whatever criteria you are thinking. Okay, you do it. So three questions, 30 days, 90 questions you will do, or you can, and in the last 2 weeks revise all the questions with model answers, or in fact you revise not the model answer but your answer, because you will remember it easily. Questions and evaluated answers, basically self evaluated. So while doing self evaluation you have to make sure that whatever things are missing in your copy, in your answer, you can write down from the model answer in your copy. Okay, in your answer, that means in the side or in the heading, whatever place is there, you add on whatever is the missing, whatever you feel is not there, so just add on in your answer, like we are adding sometimes in your answer that this is missing, please add that. So like that you add whatever things are missing in the in your copy, in your answer, from the model answer, so that next time when you read the answers, just read your self evaluated answer only, no need to read model answer. Just the keywords you should revise, keywords. That means उसमें अगर 5 points हैं, 3, 4, 5, 6 points are there, है ना? Just revise them, just revise them. Okay, revision is the key in the last 2 weeks. ठीक है. So I'm just telling you 90 questions plus you can do. Maybe you can, someone of you will do 4 questions. There is actually one more pattern is there. Either you do 3 questions in 30 minutes, or you do 6 questions in 1 hour also. And then you need, for evaluation also you need 1 more hour at least. So you will be spending 2 hours in almost daily answer writing of these questions with self evaluation. But you do not know the power of this unless you do it. Those students who have qualified with very high GS marks, including Pallavi Verma last year, and few more students who have qualified, who have followed it. Pallavi I know because she has rigorously followed it, and I was keeping a track on it also. So she followed it meticulously, and resulting she got 410 marks in GS last year, which was a very good marks. This time many people have got more than 400, but last time very few. Those who actually topped also, they have got something plus 400 plus. So she got 410, and because of this only she qualified. She qualified with a good rank of, I think, 340 rank is there. She was allotted IAS. Okay, so I am saying you this because you will feel bored. You will be thinking that who will do this every day, 3 questions or 6 questions. Who is going to self-evaluate? Who will take a lot of effort? Better I will read, remember, whatever things you will be thinking. But I'm telling you, you never know the
power of unconscious mind. Here your unconscious mind is involved, lots of effort from that, because every day you are following it in a particular time. Okay, so particular time will give you the context effect. Context effect means at the same time in the examination also you will be writing the examination either start at 9 a.m. or 2 p.m. So you're either you will start the practicing of this question at 9 sharp or 2 p.m. Don't start after that, means कर सकते हो कभी भी, that is your own wish, but the best timing for this 9 or 2, because the same time in the examination also you will start, so your mind will be accustomed, and the context of it will be there, so you will be recalling and writing the answer very fast in the very first minute itself. So you will see this, the power of this process actually in the examination only, right? You will think, oh, we'll do like this, and you will feel boring. Someone will continue, and then for some time you will and not do it also. But I'm telling you, because you have invested a lot of years here, you have invested a lot of money here and there, and a lot of efforts, emotional things, many things are actually going on in the background. So all these things, if you want to culminate into a right service, right deserving service for you, as per your knowledge and the all your efforts, if you do this, definitely you will see the improvement in marks as well as the confidence in yourself, right? So confidence is of prime importance. Unless until you do this, you won't see the difference, right? And I'm telling you, you start from now, give it more than 30 days, you will solve more than 100 questions. You will solve more than 100 questions, right? With answer self evaluation, you can easily expect similar questions because you are solving it from some good test series, and those questions will be obviously some of the expected questions in the examination. So you will solve at least, you'll get the chances of getting in the examination of this 100 plus questions is more than around 20 plus questions you'll get directly or indirectly, in which you will be able to write the content which you have updated it from the model answer as well as on your own, which you have to revise it also. I told you, at least try revising it at least 2 times. Revision of all the test papers evaluated answers done by you, uh, all the of the test papers or test questions evaluated, self evaluated answer at least 2 times, right? कैसे करोगे? जो जो फर्स्ट रिवीजन होगा, द फर्स्ट रिवीजन शुड बी डन in the second last week. It means you can start from the 1st of September, and first and the फाइनल रिवीजन, दैट मीन जो पहला रिवीजन होगा सेकंड लास्ट वीक का मतलब है फर्स्ट रिवीजन इन, यू कैन पुट द डेट 1 2, मे बी यू कैन पुट 5, अरे बहुत जल्दी हो जाएगा, इट विल बी वेरी फास्ट, September 1 to 5th, and then final revision can be from 6th to 10th September. So if you do it 2 revisions, and you know that we have the test papers, इसका भी revision कर लेना है, you just revise it, and definitely you're going to find many questions in the examination, even from our test series and our 100 most probable questions which we'll be launching. It is nothing but the test series only, the test series which we are giving you and you're writing the test. I am going to launch it in the form of 100 most important questions for the examination, and it has been done since last 2014. Since 2014 we are doing it. This will be 7th year, so we'll be launching it, and it contains all the questions of the test series only. It will be helpful for the other students who have not joined the test series. They are reading it, and they are remembering, and they are every time after the examination they are thanking me also, personally messaging me also, that I have read your 100 most probable questions, and it helps me to solve most of the questions. And even we also claim after seeing the paper, some of the questions, like last year it was 24 questions from all the papers including ethics, and before that it was 18 plus questions. Every day you will find, sorry, every year you will find more than 18 plus questions from our test series, or 100 most probable questions, whatever you can say. Okay, so this will be also adding value to your answer, adding knowledge to your answer. And these two efforts, that means the test series will be there, you have to revise it also before examination, and the practice of the either 3 questions or 6 questions depending as the time you have, do it, and definitely you will see the best results during the examination. You'll find that you are
your performance has increased tremendously, and within 2 weeks you'll see the difference also, right? So I'm telling you that do this because this will help you a lot, and don't think that this will be a lazy exercise and it will be of no use. Writing practice is very important for the main examination. Without writing, you won't be able to think creatively also, and you cannot organize your answer in a quicker way. By practicing such things, such questions, you will be able to organize them, think effectively, and write them quickly in the examination. Right? All these things are very important. And coming to the next part, those one person have asked, so can we write the PYQs? PYQs of the mains. See, so I'm telling you, PYQs already you have read it. Most of you have read it, है ना, already from various papers last year, this year. Those who are writing twice, thrice, four means, three means, they have attempted it also every year. Like 3-4 साल का तो कर ही लिया है. So I'm telling that the PYQs are of not much use. Moreover, the current affair questions will be outdated in that because जो 2018 में आया है, 19 में आया है, it is of no use at present context. So if you do the practice of the questions of the test series, because they will be relevant as per the current affairs also. The current affairs things questions will also be framed in the test series. So this will help you to remember them also. You will be able to understand and get in understanding and the syncing with the current affairs. But if you're doing PYQs, the current affairs is already outdated. It's of no use. Only the static part is sufficient, and that too you have read it many times. You know what to write. So that will be similar to copy pasting something which you know already. It will not give much impetus to your knowledge, previous knowledge, organizing it and writing it in a proper format. So my suggestion is that do it for the from the another test series which you feel that it is good and it has good model answer, right? So that you can practice it. ठीक है, ये कर सकते हो additionally, and I'm telling you this will be boosting your marks in the examination at any cost. And I'm telling you those students who have done it sincerely have thanked me later after the examination and after getting marks also, even after getting selection कि सर वो किया था आपने बताया था, वो किया था और सर उससे बड़ा फायदा हुआ. ये सबने बोला है, ऐसा एक भी नहीं बोला है कि नहीं सर उससे बड़ा नुकसान हो गया, मेरा तो क्वेश्चन ही छूट गया. ऐसा कोई बोलेगा भी नहीं. ठीक है, क्योंकि उससे फायदा होना तय है प्रॉपरली. अगर आप प्रॉपरली हो, इफ यू आर गोइंग टू गिव 1 hour फॉर राइटिंग 3 क्वेश्चन और 45 minutes फॉर राइटिंग 3 क्वेश्चन, देन यू आर एक्चुअली पेनलाइजिंग योरसेल्फ, यू आर चीटिंग योरसेल्फ. Be strict with yourself, be strict with the timing, give your full effort, है ना. Just see the questions, understand the question, write down the answer within 10 minutes for all questions, all 3 questions, and then close it. Then evaluate it yourself from the model answer and add the whatever content is missing, whatever keywords are missing in your answer, you write there with the red pen, with some other pen, red pen. You can evaluate and write down the things which are missing and give yourself marks also if you want, or no problem if you're not giving marks, it's okay. And then keep it as a test paper for revision. The first revision will be done from 1st to 5th of September. Second revision can be done from 6th to 10th. उसके बाद खत्म. ठीक है, उसके बाद नो रिविजन, सीधे एग्जाम, जो भी पढ़ना है और पढ़ लेना. राइट, यू रीड इट वट एवर यू वांट टू रीड लेटर. ठीक है. So by 10 it will be over all the revision of these test papers, and the benefit of it will be immense. You will see it directly in the examination. Okay, done. ये मैंने बता दिया. ठीक है. How many of you will do it? जिसको निकलना है वही करेगा, और करेगा तो निकल जाएगा. राइट, गुड. दो तो मिले, बाकी 31 में से कुछ लोग नहीं करने वाले हैं. ओके, वेरी गुड. ठीक है. इफ यू डू इट डेफिनेटली, एक्चुअली आई डिड इन पास्ट. हाँ, प्रशांत कर, तो कुछ कुछ फायदा मिला इससे प्रशांत? एक्चुअली फॉर योर सेल्फ सम दैट प्रॉब्लम वाज आल्सो देयर ना इन योर आंसर. ठीक है, वो प्रशांत यू ऑलवेज एक बार और देख लेते हैं ना. सम पीपल यू हैव सेंड मी, आई विल डू दैट. वेरी गुड. एंड अगर आप लोग करोगे डेफिनेटली, देखो भारती ने ऑलरेडी किया है, वेरी 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 बेनिफिशियल. देखो कितने लोग किए हैं, वेरी गुड. तो इसका बेनिफिट आप डायरेक्टली एग्जाम में देखेंगे, बिकॉज फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई हैव टोल्ड इट. आई एवरी ईयर आई आस्क माई स्टूडेंट्स टू डू इट. सम विल डू, सम विल नॉट डू. I read your top 100 question. I gave interview that year. Rahul More. Oh, it's very good. Thank you. Actually, confidence matters. Yeah. Okay. So
सो आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट। ये करना है जो मीन्स लिख रहे हैं। अगर आपको 400 प्लस में निकलना है, यू हैव टू डू इट। और इतना साल आपने बर्बाद किया है, बर्बादी किया है, और पैसा बर्बाद किया है, धक्के खाए हैं, इमोशंस बहुत लूज हुए हैं, तो ये राइट मौका है 1 महीना। इसमें जो कर लेगा वो निकल जाएगा। अब इसमें जो आलसी रह गया, जो थोड़ा सा लेड ऑफ एटीट्यूड हो गया कि ठीक है कॉम्प्लेसेंसी है, जो लोग सिलेक्टेड हैं, इसमें कुछ सिलेक्टेड भी लोग हैं, थोड़ा सा भी अगर कैजुअल हो गए तो वो रह जाएंगे। बिकॉज आफ्टर ऑल इवन इफ यू आर सिलेक्टेड, यू आर ट्राइंग फॉर आईएएस ओनली, राइट? यू आर गिविंग सम एक्स्ट्रा टाइम, you are devoting your energy, your whole attention to it। इन सबका कॉज होता है, इसका कॉस्ट होता है। यू आर पेइंग फॉर इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल वे, यू आर पेइंग इट। सो व्हाई नॉट यूटिलाइज इट इन द विथ लिटिल मोर हार्ड वर्क इन द लास्ट 40 days, 40 और 30 days। बस 1 महीने की तो बात है, जस्ट 1 month। एंड जिंदगी के बेस्ट सर्विस में आप जिंदगी भर ऐश कर सकते हो, राज कर सकते हो। रूल ही करते, considering it's to be public servant, but it's actually the not a public servant। वो कहने का public servant है, but they are quite, they enjoy lots of power and prestige, and that is very good, very power and prestige in the society, and if a support system from the government, so that matters a lot, right? So just one more last throttle, just do it, and you will see the benefit of it immensely in your examination। ठीक है? So many of you already promised that you will do it. That is very good. And considering this, I'm very happy that most of you will do it. And in case any problem issues, you can always get back to me again and again। ठीक है? ये कुछ लास्ट मिनट की स्ट्रेटजीज हैं। अब ये टाइम आ चुका है इसको करने का। आई दिस इन दिस यू कैन डू दोज क्वेश्चंस ओनली व्हिच यू हैव डन, लाइक कंप्लीट हो गया। जैसे जिसका एथिक्स हो गया, दे कैन गो फॉर एथिक्स क्वेश्चंस। जिनका ज्योग्राफी हो गया, दे कैन गो फॉर ज्योग्राफी क्वेश्चन। जिनका हिस्ट्री हो गया, दे कैन गो फॉर हिस्ट्री क्वेश्चंस। सो जो हो गया है, डोंट टेक द न्यू टॉपिक्स एंड राइट समथिंग बोगस, because this will not help you, because you haven't prepared for it। if you are prepared for it, then only you go for it, right? So you do this। ठीक है? ये पूरा फाइनल है मेरी तरफ से, आप लोग करेंगे। एंड सेकेंडली, एक तो मेन स्ट्रेटजी है। सेकेंडली वी हैव द स्ट्रेटजी फॉर द ऑप्शनल। ऑप्शनल पेपर की भी स्ट्रेटजी बता देता हूँ, मतलब बताना रह गया मुझे। और इवन द कंपल्सरी पेपर, कंपल्सरी पेपर्स आर देयर, राइट? कौन कौन से हैं कंपल्सरी? जो आपका लैंग्वेज पेपर है, इंग्लिश एंड मे बी सम अदर रीजनल लैंग्वेज, राइट? एंड ऑप्शनल पेपर। देखो इन दोनों के स्ट्रेटजी जो है, आई विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज अभी कोई फायदा नहीं इनका, बिकॉज कंपल्सरी पेपर का तो कोई यूज ही नहीं है अभी। बिकॉज इन द एंड ओनली यू विल बी इन द फॉर्मेट टू अंडरस्टैंड इट। नाउ यू विल बी थिंकिंग ऑन द अदर पार्ट। सो इसमें इंग्लिश के पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि आई हैव सीन मेनी पीपल हु हैव लेफ्ट क्वेश्चंस इन द इंग्लिश, और या सॉरी के रीजनल में, इंग्लिश में नहीं, रीजनल में क्वेश्चन छूट जाते हैं। एंड लाइक ट्रांसलेशन में, तो उसमें अगर ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो कुछ और छूट जाता है, कुछ और करेंगे तो ट्रांसलेशन छूट जाता है। सो इसको कैसे करना है, क्योंकि इसमें भी पासिंग मार्क चलो कम हो गया, 25% इज देयर, बट स्टिल फ्यू विल फेल स्टिल इन दीज टू पेपर्स, राइट? एंड इसमें फेल होने का मतलब ये है कि लाइक ऑलमोस्ट लाइक यू आर फेलिंग इन सी सेट ओनली, बट सी सेट तो टफ हो गया है। पर इसमें फेल होने का मतलब ये है कि मतलब अनफॉरगेबल, मतलब कोई माफी नहीं दे सकता इसके लिए। और किसी को बता भी नहीं सकते कि इसमें फेल हो गए, हंसेगा अलग से। तो इसमें पास होना तो मतलब ऐसा है कि कोई फायदा नहीं, मतलब इससे फेल होने कोई मीनिंग नहीं है। सो आई एम टेलिंग यू, सो आई टेल यू ए राइट स्ट्रेटजी टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, सो दैट योर एफर्ट विल बी मिनिमम एंड मार्क्स और जो आउटपुट होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है? एंड ऑप्शन में भी मैं कुछ कुछ चीजें आपको बता दूंगा डिफरेंट, कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, मतलब अटेम्प्ट करने का मतलब ऑर्डर क्या होना चाहिए ऑप्शन में भी। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एज वेल एज कि ऑप्शन में क्या क्या, ऑप्शन में हम क्या क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं। बिकॉज यू नो मोर देन यू हैव डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस, पर सब ऑप्शन का एक मोटा मोटी कॉमन स्ट्रेटजी भी है, राइट? सो दैट योर पेपर गेट्स कंप्लीट ऑन टाइम। यू शुड बी डूइंग इट फुल्ली थोरोली। ये सब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? नाउ कमिंग टू अनदर थिंग, like some of you who are freshers and writing the paper in 2022 means मतलब this year, ठीक है? जो जो अभी लिख रहा है फ्रेशर, मतलब those who got the first chance to write the mains, ठीक है? If you have not completed world history and post independence, if you completed, ठीक है,
You go and revise from there. Whatever you want to do, you can do. But if you have not completed this post independence and world history and not started yet, so my humble suggestion is that leave it, because अभी time बचा ही नहीं है. Now if you're going to read it, understand it, and then revise it, है ना, at least 3 times before the examination. अगर इतना आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो कर लीजिए. But if you are busy with optional is also there, other papers are also left, essay is also there, and you are not, because this is your first means, so you are not well prepared. Then I'm telling you, then छोड़ सकते हो फिर. You have to decide on your own. But my my suggestion is that in case you haven't done anything, then you can leave it. But if you have done one reading or maybe two reading, तो just revise it. ठीक है, क्योंकि इससे probability of क्वेश्चंस कमिंग विल बी 1 or 2 फ्रॉम ईच पार्ट. लेकिन मोटा मोटी दोनों मिला के 3 से ज्यादा नहीं, नहीं होने का बहुत कम चांस है. होने को हो भी सकता है. इट्स ए मैटर ऑफ बैड लक फॉर यू दोस्त, अगर जो आपने छोड़ दिया और एग्जाम में आ गया. बट मोस्टली मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस का चांस बनता है इन दोनों टॉपिक्स में. और नहीं तो 2 आते हैं. वर्ड इस चीज कई बार नहीं आया और 1-2 बार आ भी गया. Right? So you can see the PYQs and then you can find out and gauge your ना कि मैं कहाँ तक स्टैंड करता हूँ, कहाँ तक मैं करूंगा. राइट? बाकी रेस्ट थिंग्स यू हैव टू डू. ये सिर्फ इन दोनों के लिए एप्लीकेबल है, बिकॉज देयर वर्ड हिस्ट्री इज टू वास्ट एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इज ऑल्सो वास्ट. नहीं उतना बड़ा नहीं है, बट ठीक है, इसमें पढ़ना पड़ेगा. एंड इफ यू वांट टू लीव बोथ, अगर आपको लगता है नहीं मैं एक कर सकता हूँ, देन डू पोस्ट इंडिपेंडेंस, बिकॉज इट इज ऑफ शॉर्टर पेजेस, मतलब कम में हो, जल्दी हो जाएगा. और यू कैन रिलेट इट विद द प्रेजेंट टाइम, सो इट विल इजी टू रिमेंबर. एंड स्टिल इफ यू वांट टू डू समथिंग मोर, वर्ड हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन और जो जो हेडिंग है ना, जो हेडिंग, जो जो टॉपिक्स हेडिंग है, जस्ट गो थ्रू देम ओनली. डोंट गो फॉर द माइन्यूट डिटेल्स इन द वर्ड हिस्ट्री, है ना. डोंट गो द माइन्यूट डिटेल्स, क्योंकि वो तो चांस ऐसे भी नहीं आने का, और आ भी जाएगा तो किसी को नहीं पता. सो यू गो फॉर द ब्रॉडर डिटेल्स, ब्रॉडर, like Russian Revolution, है ना, when it was started, consequence, impact, what are the major cause, ऐसी French Revolution, unification of Italy, Germany, whatever, only the important parts. Because if some questions come, then you will be able to do it and other will also be able to do it. ऐसा ना हो कि सब कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं. इस वजह से उसको कर लेना. राइट? So this is another thing. And the remaining time which you have up now, from now onwards, एक तो वो मैंने बताया वो करना ही करना है. Second thing you can do is that now if you are reading something new, कोई new material if you are reading still, you can read, no problem, अभी पढ़ सकते हो. Make sure that whatever new material you are starting now or reading it, make sure that you are revising at least 3 times before the examination. Already I told you in the beginning that whatever material you are picking up, make sure that you revise it at least 3 times, and then only you pick it. Otherwise, just reading one time, the recall will not be there in examination, and obviously it will be of no use. So उसको यूजफुल बनाना है, उसको काम का बनाना है. So you have to revise it at least 3 times. Any new material. ठीक है, क्लियर है. तो अगर whenever you are starting any new material, just make a frame of mind that I will revise it 3 times, then only you start it. Else छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है. बिकॉज जो नहीं लिखा पेपर में वो नहीं पढ़ा. It is assumed to be whatever you have not written the copy or in the answer, that means you do not know. So whether you know it and you have kept it in your mind, or you have forgotten it, or you are not able to recall it, it means the same thing that you do not know. So जब पढ़ा ही नहीं, जब लिख ही नहीं पा रहे हैं, तो पढ़ने का फायदा क्या. राइट? सो इस स्ट्रेटजी से काम करेंगे, यू विल रिड्यूस योर बर्डन, रिड्यूस योर अननेसेसरी बर्डन. ठीक है, क्योंकि जब एग्जाम में लिख ही नहीं रहे हैं वो लाइन, वो वर्ड या वो पैरा या वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, तो उसको फायदा क्या कि मुझे आता है लेकिन मैं लिख नहीं पाया, क्या फायदा उसका. एग्जामिनर को तो नहीं पता कि आपने पढ़ा है. एग्जामिनर को नहीं पता तो समझेगा आपको नहीं आता है, नहीं आता तो मतलब आपको नंबर नहीं मिलेगा. सो कंसिडरिंग दैट थिंग, दैट यू डू whatever you can revise at least 3 times. ठीक है, एक चीज ये है. थर्ड है करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स विल बी ऑलमोस्ट न्यू मटेरियल फॉर यू. इसमें क्या है, 3 रिवीजन तो मस्ट है, 3 रिवीजन तो करना है. दोज हु कैन रिवाइज इट वन मोर टाइम, वन मोर रिवीजन, दे विल बी हैविंग द बेस्ट रिकॉल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. अगर 3 करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा. ऐसा मैंने किया हुआ है ना, मेरे को प्रैक्टिस है. लेकिन अगर मैं 4 करके गया हूँ जब भी, तो ये बेस्ट रिकॉल है. मतलब जो सोचोगे
एकदम photographic memory like types you will be able to recall, right? This is I'm telling you from my personal experience, so you do not have to, है ना, कि उसको मैं चेक करके देखूं, कि चेक करने में तो अपने नंबर कम हो जाने हैं। सो 3 रिवीजन, लेकिन 2 रिवीजन में कोई फायदा नहीं होने वाला, हल्का हल्का याद आएगा, राइट? 1 का तो कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है? 2 रिवीजन में बहुत हल्का हल्का याद आएगा, बहुत अच्छा पॉइंट नहीं आता है। 3 रिवीजन एंड नाउ हाउ टू डू रिवीजन, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ यू। मोस्ट ऑफ यू विल डू मतलब जस्ट ऐसे रिवाइज कर लिया और एग्जाम में रिकॉल नहीं हुआ, फिर कहोगे मैंने तो 4 बार रिवाइज किया था रिकॉल नहीं हुआ। कोई लोग होते हैं 2 बार रिवाइज करते हैं रिकॉल भी होता है, वो बोलते हैं मेरी बहुत अच्छी मेमोरी है। बट एवरीथिंग comes how you are going to revise it. So revision are of two types. One is active revision and another is passive revision. ठीक है? ठीक है? अब पहले देखते हैं पैसिव रिवीजन क्या है। पैसिव रिवीजन, पैसिव रिवीजन इज दैट whenever you are going to read, है ना, फ्रॉम, जो भी आपको रिवाइज करना है, वट एवर यू वांट टू रिवाइज, यू जस्ट रीरीड रीरीड इट फ्रॉम जो भी मटेरियल आपके पास, कि तूने मतलब उसको जस्ट यू हैव गॉन थ्रू, ओके मैं एक बार देख लेता हूँ क्या क्या लिखा है, अंडरलाइन को पढ़ लेता हूँ, अच्छा ये है ये है ये है ये, ऐसे से पढ़ लिया, ठीक है? जस्ट यू हैव रेड द कीवर्ड्स और यू हैव जस्ट रेड द स्टेटमेंट्स, ओके ये पॉइंट्स है, अच्छा ये पढ़ लिया, दैट इज कॉल्ड पैसिव रिविजन, बिकॉज you have not involved your mind actively in thinking and analyzing and recalling the same stuff which you have read it for the first time, मतलब यू हैव जस्ट पढ़ लिया उसको, जस्ट रेड इट, रीड किया है, ठीक है? ये पैसिव रिवीजन है। इसको कितना भी कर लोगे ना, कुछ कुछ कमी रह जाएगी, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉल इन द एग्जामिनेशन, डिफिकल्ट टू रिकॉल। पैसिव रिवीजन में डिफिकल्टी रहती है। नाउ कम्स द एक्टिव रिवीजन। एक्टिव रिवीजन इज बेसिकली एनालिसिस, है ना, इवन अपडेशन, उसको आपने गूगल से देखा, कुछ ऐड किया तो याद भी रहा, है ना, अपडेशंस, एडिशंस, है ना, देन रिकॉलिंग इन माइंड एंड समटाइम्स राइटिंग इट ऑन पेपर। एक ग्राफ में लिखना शुरू करें ना, क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या पॉइंट्स है। दिस इज कॉल्ड एक्टिव रिवीजन। इसमें क्या है, योर माइंड इज इन्वॉल्व, यू आर गोइंग टू अपडेट इट, यू वांट टू ऐड इट, यू आर रिकॉलिंग इट, है ना, यू आर राइटिंग इट ऑन द पीस ऑफ पेपर, राइट? आप ये सब कर रहे हो, तो क्या होगा, योर माइंड विल बी एक्टिवली इन्वॉल्व एंड यू विल बी फर्स्ट रीडिंग इट एंड देन रिकॉलिंग। अच्छा उसमें ये जो केस हुआ था, जैसे कोई भी केस ले लीजिए, कोई भी जो न्यूज में है ना, मे बी एंटी डिफेक्शन का कोई जो केस चल रहा है महाराष्ट्र में, जो भी हुआ ये सब, तो यू उसमें क्या क्या एनालिसिस किया आपने, तो उसमें व्हाट आर द पॉइंट, जस्ट यू कैन रिकॉल 1 2 3 4 5, बस कीवर्ड्स, दैट्स ऑल, कीवर्ड्स आप एक्सपेंशन यू विल डू इट इजीली, सो जस्ट कीवर्ड्स आपने रिकॉल कर लिया, ये एक्टिव रिवीजन है, एंड यू कैन राइट इट और यू कैन उसको रफ में आपने प्रैक्टिस कर लिया, एनालाइज कर सकते हैं, कोई डेटा डाल सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं अपना मटेरियल, एडिशंस कर सकते हैं, तो दिस विल आल्सो कीप यू इन्वॉल्वड इन राइटिंग इन इम्प्रूविंग योर कंटेंट, दैट मींस योर माइंड इज एक्टिवली इन्वॉल्वड इन एक्टिव रिवीजन। एंड इसका जो होगा 3, आप 3 बार रिवाइज करोगे, है ना, और प्लस 1 भी करोगे या नहीं भी करोगे, इट इज विल बी वेरी इजी टू रिकॉल, it will be very easy to recall. I'm telling you from experience only that do try for active revision, because now the time is for started for revising also, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब जो एक्टिवली नहीं करेगा रिवाइज, पैसिवली रिवाइज करेगा, पढ़ लेगा, क्यों? तो पैसिव रिवीजन में क्या होता है, बहुत इजी लगता है, अरे पढ़ लो, सोते सोते पढ़ लो, पढ़ लिया हो गया, मतलब मन में झूठा तसल्ली हो जाता है कि नहीं हमने रिवाइज किया है, अपने को कॉन्फिडेंस, जबरदस्ती कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। पर एक्टिव रिवीजन में क्या है कि आपको टेबल पे बैठना पड़ेगा, कुर्सी पे बैठना पड़ेगा, टेबल कुर्सी रखना पड़ेगा, देन यू हैव टू इन्वॉल्व योर माइंड, कोई आलतू फालतू चीज नहीं, फोन को दूर रखना पड़ेगा, तो बहुत एफर्ट इन्वॉल्व है, माइंड को फोकस करने का ही तो सारा खेल है ये। सो ये इसलिए आपको बड़ा उसमें आलस आएगा कि ओ इट्स वेरी लाइक कॉम्प्लेक्स, हु विल डू दैट एक्टिव रिवीजन, हु विल राइट, अरे पढ़ लेंगे वहां हो जाएगा, नहीं होगा, कोई कोई वहां पे चमत्कार नहीं होने वाला है, आई एम टेलिंग यू। चाहे कितनी पूजा कर लो, कितने अंगूठियां पहन लोगे, कितना भी प्रसाद चढ़ा दोगे, भगवान वहां पे आके नहीं याद दिलाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर जरा भी विश्वास अपने ऊपर है तो ही निकल पाओगे आप। भगवान पे विश्वास, वो क्या है ना, कौन सा डायलॉग है कि शायद भगवान, मतलब अगर वो क्या था कि भगवान अपन का इंतजार कर रहा था कि हम ही कुछ करें, है ना,
वो डायलॉग था ऐसा कि मुझको ही कुछ करना पड़ेगा, शायद भगवान मेरे इंतज़ार में कि मैं ही कुछ करूँ। इसलिए डोंट थिंक दैट कि काम चल जाएगा, मैं मुझको याद आ जाएगा, नहीं। अगर यहाँ याद नहीं आ रहा है व्हेन द कम्फर्ट ऑफ इट एट होम, तो वहाँ पे याद नहीं आने वाला। क्योंकि वहाँ तो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, टाइम नहीं है, बहुत सारे आपको स्ट्रेस जल्दी लिखना है। जब यहाँ पे इजी कंफर्ट में आप नहीं लिख पा रहे हो 5 पॉइंट, रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व योर माइंड एक्टिवली, वहाँ पे भी नहीं याद आने वाला। सो मेक श्योर दैट यू डू द एक्टिव रिविजन एग्रेसिवली, राइट? एक्टिव रिविजन एग्रेसिवली। हल्के फुल्के काम में काम खराब हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि सी यू आर फाइटिंग फॉर द टफ एग्जाम ना, वहाँ पे एक से बढ़ के एक लोग, दे गिविंग योर डे एंड नाइट ऑन दिस, रात दिन जिनके लिए यही सब कुछ है, उनके लिए कुछ नहीं है। उनके लिए बहुत सारे लोग यहाँ इतना कमिटेड है, मेरे स्टूडेंट्स में काफी लोग हैं, हम जान ही रहे हैं, है ना? आई नो दैट, मतलब नाम क्या लूंगा मैं जान रहा हूँ उनका बहुत कमिटमेंट है इस एग्जाम को लेकर, उनकी जीवन और मृत्यु टाइप से इसमें मतलब बसा हुआ है। जब इतना सब हो चुका है तो क्यों पैसिव रिवीजन करें, एक्टिव रिवीजन करते हैं, माइंड इन्वॉल्व करके करते हैं, रिकॉल करके करते हैं, ताकि वो याद भी रहेगा और एग्जाम में भी लिख पाएंगे, ठीक है? तो इतना आप करोगे, यू विल सी द डिफरेंस। ये वाला काम, ये एक्टिव रिवीजन वाला काम एंड दैट राइटिंग वाला, सब बहुत आपको बहुत गेन करा देगा। मतलब आपको भी नहीं पता, आपको जब नंबर आएंगे तब यू विल सी द डिफरेंस, कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा, ठीक है? तो ये हुआ। और है ना, ऐसे का जो बात है, ऐसे whatever essay you have written, madam is going to correct it, right? And you can take the one-to-one feedback from her also. And there is delay on the part of madam because she is busy in some of the personal private work, whatever something is there. Now she has resolved it and she will be doing checking your copy, and you will get your copy very soon, maybe today and tomorrow. Some of the copies you will get, and उनसे आप बात कर लेना, ठीक है? Whatever you want to ask. And essay का, but some more practice you want to do it, you can obviously do it one essay per week, ठीक है? एटलीस्ट वन ऐसे, दो भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू ओनली। वन फुल ऐसे, या हाँ ठीक है, वन फुल कर लेना, वन प्लस वन यानी वो टू सेक्शनल हो गया, तो यानी वन फुल ऐसे, वन फुल ऐसे टेस्ट यू डू इट पर वीक। कोई भी एक दिन निर्धारित कर लेना जिस समय ऐसे का टाइमिंग है। अभी तो डेट शेड्यूल आ गया है ना, मॉर्निंग में है तो मॉर्निंग वाला 9 बजे से कर लेना, अगर शाम वाला है दोपहर वाला, मॉर्निंग वाला आई थिंक, ठीक है? तो वो जो भी उसमें टाइम है वो आप जस्ट उसमें फॉलो कर लेना, राइट? ऐसे का। एंड दिस यू हैव टू डू सेल्फ इवेल्युएट। पर क्या है ना, इसका इवैल्यूएशन उस दिन मत करना, सेम डे मत करना, बिकॉज सिंस यू हैव जस्ट रेड इट, अभी लिखा है आपने, so your mind will be actively involved, नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छा लिखा, बहुत बढ़िया लिखा है, आई हैव डन एक्सीलेंस इन डेटा एंड मैंने कितने पॉइंट डाल दिए, ये वो। विल लेट इट दिस इमोशन सेटल। इसको आप क्या कर सकते हो, वन थिंग यू कैन डू, इसको आप चेक करो वन वीक बाद, एक हफ्ते बाद आप देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे कैसे ऐसे लिखे मैंने, मेरी मतलब उतना बेसिक सा है, नॉट मच डायमेंशंस हैव गिवन, इट्स नॉट सो गुड, यू विल फाइंड आफ्टर वन वीक ओनली। उस समय तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? लेकिन एक हफ्ते बाद जब आपका उसमें से जो आपका ऐसे का जो माहौल है, जो माइंडसेट है, जो नशा है वो उतर जाएगा, तब आपको लगेगा यार ये तो बहुत बेसिक ऐसे, मजा नहीं आया। एक कर ये कर सकते हो। सेकेंडली व्हाट यू कैन डू, यू कैन शो योर ऐसे टू सम ऑफ योर गुड फ्रेंड्स, आलतू फालतू नहीं, गुड फ्रेंड भी जानते हो कौन कौन से होते हैं? एक वो होते हैं जो पढ़ लेंगे, उन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, अच्छा अच्छा बताएंगे, उन्हें पता है इसका तो कुछ नहीं होने वाला, मैं तो निकल रहा हूँ, ये तो रह जाएगा, मैं इसको क्यों बताऊं। वो गुड फ्रेंड्स में नहीं आएंगे। वो फ्रेंड आपको चाहिए जो क्रिटिसिज्म आपका करे, अरे क्या लिख दिया, ये गलत है, ये नहीं लिखना है, 4 पॉइंट्स और लिखो, ये डायमेंशन बढ़ाओ और ये लिखो, और तुम्हें ये भी पढ़ना था, तुम तो ये नहीं आता, वो नहीं आता। दे आर योर गुड फ्रेंड्स, ठीक है? दे विल हेल्प यू आउट। तो इनको भी दिखा सकते हो, यू कैन शो टू देम। एंड लेकिन उनको दिखाने से पहले फर्स्ट यू डू द, उनको दिखाने से पहले यू फर्स्ट डू योर ओन एनालिसिस, क्योंकि उनको दिखाने के बाद देन यू विल बी एबल टू, है ना, वर्क ऑन दोज लाइंस ओनली, उन्हीं का बात आपको याद रहेगा, राइट? सो जस्ट शो टू योर गुड फ्रेंड्स आफ्टर यू हैव इवेल्युएटेड, आफ्टर ए वीक टाइम, एक हफ्ते बाद यू कैन शो इट, ठीक है? ये कर लेना, ठीक है? और उसमें वैसे ही बताया था अनऑर्गेनाइज ब्रेनस्टॉर्मिंग और ये वो लिखना है, देखना है पूरा उसका। एंड गेट ऐसे टॉपिक्स आल्सो यू कैन सी फ्रॉम some of the test series of some good coaching, ठीक है? जो भी आपको अच्छा लगे, जो टॉपिक पे आपका कमांड हो, यानी जिसका फॉर्डर मटेरियल यू हैव रेड, फॉर्डर मटेरियल, जैसे आई हैव डिस्कस्ड इट द लास्ट थिंग, दैट फॉर्डर मटेरियल्स फॉर मेनी मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर, लाइक वुमन का है, एजुकेशन का है, you have read those fodder materials, then you go through the this test
ऑफ ये जो ऐसे के टेस्ट हैं तभी करना जब फॉर्डर मटेरियल, ऐसे नहीं कि चलो कुछ भी लिख देंगे, बिकॉज दैट सी कुछ भी लिखने में यू आर नॉट गोइंग टू वैल्यू एडिशन, यू आर नॉट गोइंग टू वैल्यू एडिशन ऑन योर पार्ट, बिकॉज आपको आता ही नहीं, आपने रैंडमली लिखा है तो कहाँ कुछ पता चलेगा, राइट? आपको पता जब चलेगा जेन व्हेन यू हैव रियली वर्कड हार्ड ऑन दैट टॉपिक, यू हैव रेड ऑल द थीम्स, यू हैव रेड दैट थीम, लाइक फॉर एग्जांपल वुमेन का एजुकेशन, यू हैव रेड द थीम्स प्रॉपर्ली, सारे फॉर्डर मटेरियल पढ़ लिए, रिवाइज भी कर लिया है, और ऐसे का जब भी आप लिखे ना, फर्स्ट रिवाइज द फॉर्डर मटेरियल। जब भी मैं बोलता हूँ ना रिवाइज, तो मेरा रिवाइज मतलब होता है एक्टिव रिवीजन, पैसिव नहीं, राइट? सो रिवाइज द फॉर्डर मटेरियल, whatever I have also shared it, you can also get it from the market, कोई भी न्यू मटेरियल भी पढ़ सकते हो which you think is good, उसको देखने के बाद you write the essay, ठीक है? एक बार रिवाइज कर लेना फिर लिखना, then it will be qualitative, right? On the time frame में लिखना, वो 1.5 घंटे में पहला और दूसरा भी 1.5 घंटे, जैसा कि मैंने पिछली बार डिस्कस किया हुआ था, ठीक है? सो ये चीज है, दिस यू हैव टू डू इट, ऐसे का, ठीक है? तो ये हुआ ऐसे वाला पार्ट। और GS 1 2 3 4 में आई थिंक GS 4 मोस्ट ऑफ यू हैव कंप्लीटेड। अब GS 4 का जो रिवीजन है वो लास्ट में करना, ठीक है? लास्ट में करना, अभी कोई जरूरत नहीं इसकी रिवीजन करने का, अगर इसका कंप्लीट हो गया है तो रिवाइज इट इन द लास्ट। रिवीजन क्या करोगे लास्ट में, क्यों क्यों ऐसा मैंने बोला? बिकॉज यू सी only 20% will come from the books or whatever you have read, and that too basically the definition part। definition part ये आएगा, कोई भी बहुत से टर्मिनोलॉजीज है उसमें, उसकी डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, कुछ कुछ मटेरियल शेयर किया हुआ है। एक और मटेरियल आई हैव शेयर्ड यू दैट कंटेन्स द फिगर्स, फिगर्स है, ब्लॉक डायग्राम्स, है ना, वट एवर मैनी थिंग्स आई शेयर यू। एक 20% जो में है उसमें ब्लॉक डायग्राम जो मटेरियल शेयर किया है, आई थिंक इट इज ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट, दैट मटेरियल आई शेयर यू, डेफिनेशन पार्ट आई शेयर यू, दैट इज कैन बी, that can be used in the here and there in the questions, and already I have discussed you don't use the same template in all questions in case studies, case study में चेंज करते रहना, इवन द टॉपर फर्स्ट रैंक इस बार का भी यही बोला है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, तो आपको पहले ही बोल चुका हूँ, उनके तो वीडियो अभी आए हैं, एंड शी हैज आल्सो सेड दैट शी हैज नॉट यूज्ड द सेम थिंग, किसी में उसने स्टार्ट किया उसका समरी से, किसी में स्टार्ट किया एथिकल डायलेमा से, किसी में स्टार्ट किया उन, है ना, वॉइस इज ब्रेकिंग, so she told that she has used different templates for different questions in the ethics case study, okay? Voice distortion is there still or it's okay? I think it's fine, okay? So you, oh, you got my point? The voice sorry, the this one, ethics case study में जो टेम्पलेट्स हैं आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, है ना, ये सब यू चेंज इट इन एवरी क्वेश्चन, राइट? कमिंग टू द, जिसमें जो आता है वो जो थ्योरी पार्ट है, सो थ्योरी पार्ट यू विल गेट सम 20% ऑफ द क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम द थ्योरी पार्ट, फ्रॉम द बुक्स एंड ऑल, जो भी आपने पढ़ा है, वट एवर यू हैव रेड, सो सिंस यू हैव रेड इट, सो यू कैन रिवाइज इट इन द एंड, यानी आप लास्ट के जो हफ्ता होगा ना उसमें रिवाइज कर सकते हैं, लास्ट वीक में, दैट विल बी द बेस्ट टाइम, बिकॉज सब तो क्रिएटिविटी से लिखना है इसमें, लेकिन 20% किताब से लिखना है, जो भी आता है उसको लिख सकते, पर उसमें भी यू कैन यूज द क्रिएटिविटी, you can define on your own way also, that is very good in the case of ethics, अपनी मर्जी लिखते हैं तो बहुत अच्छा अच्छा वो चलता है, ठीक है? so that you can do it here, got my point? ठीक है, बाकी GS 1, GS 2 and GS 3 you are doing it right now, आप रिवाइज कर रहे हो, है ना? GS 2 और GS 3 is the basically the comprising of current affairs on some static part, इनका तो रिवीजन you can do it, रोज करो, जो भी पढ़ रहे हो you can value add और ये सब, राइट? GS 1 का भी you need to revise in the last week, क्योंकि ये पूरा बिना रिवीजन के होगा नहीं, तो GS 1 should be revised in the end also, ठीक है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द स्टार्टिंग पेपर, यानी GS 1 का पेपर हो, पहला जो डे का पेपर है, GS 1 एंड GS 2 है, जो भी है ना, और GS 2 है, सॉरी GS 3 एंड GS 4 है, तो कहने मतलब ये है कि स्टार्टिंग के पेपर शुड नॉट गो बैड, मतलब GS 1 को अच्छा जाना ही चाहिए, अगर ये खराब हो गया तो इट विल कैरी द बैगेज इन योर माइंडसेट ऑफ नेगेटिविटी, दैट इज फॉर एग्जांपल GS 1 में कैसा पेपर आया, आपके 4 क्वेश्चन छूट गए या आपको 5 क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, वट एवर बी द केस, देन यू विल बी हाईली डिमोरलाइज्ड एंड यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड एंड यू नो दैट नाउ यू आर आउट, यू विल थिंक लाइक दैट, है ना, यू विल थिंक लाइक दैट यू आर आउट, और इसकी वजह से यू आर नॉट गोइंग टू गिव योर बेस्ट इन GS 2, बट वो काम चलाओ लिख के आओ,
So जब डिमोरलाइजेशन हो जाएगा या नेगेटिविटी आ जाएगी, then your performance will dip, and performance will dip will affect the other papers. So that is why I always suggest students कि यार पहला पेपर खराब मत जाने दो, कैसे भी करके पूरा करो, write all the questions, write all the answers, whatever you as per we have discussed कैसे लिखना है, and try to not leave any question unless until you do not know anything about it, right? तो ऐसे करके वो पूरा करो बेस्ट, हमने जैसे बताया द द ऑर्डर इन विच यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, बेस्ट टू वर्स्ट, बेस्ट से स्टार्ट करके वर्स्ट तक जाना है। तो दैट यू शुड डू इन स्टार्टिंग पे खराब नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा माइंड में बैगेज हो जाता है बाकी पेपर्स। अगर जीएस 4 में कुछ छूट जाता है तो कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये तो ठीक हो गया ना, 1 2 3 तो अच्छा हो गया, तो दैट विल प्रोपेल योर मार्क्स। मे बी जीएस 4 यू विल हैव लॉस ऑफ सम मार्क्स, बट उतना लॉस आप बेयर कर पाओगे, यू विल गेट ए कॉल एंड मे बी यू विल गेट द सिलेक्शन। बट अगर जीएस 1 खराब हो गया तो उसका बैगेज 2 में भी दिखेगा, 3 में भी दिखेगा, 4 में भी दिखेगा। तो देयर विल बी कुमुलेटिव लॉस। जीएस 1 में तो लॉस हुआ ही हुआ, वो तो नेचुरल लॉस हुआ, पर 2 3 4 में तो आर्टिफिशियल लॉस हो रहा है, राइट? आर्टिफिशियल लॉस मतलब आपने बना के लॉस कर रहे हो, आपका डिमोटिवेशन लॉस कर रहा है, आपकी नेगेटिविटी लॉस कर रही है। ठीक है? तो ये देखो कितना कितना फायदा है साइकोलॉजी का। मतलब साइकोलॉजिकल आपको, आप एक ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से अगर करोगे काम, तो आप डेफिनेटली विन करोगे। और आप ऐसे सोचो कि हर पेपर इंडिपेंडेंट है और मेरा माइंडसेट इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है। हमारा माइंडसेट फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस, पास्ट कॉन्सिक्वेंस, प्रेजेंट कॉन्सिक्वेंस सबको लेके चलता है। एंड आप पास्ट नहीं भूल पाते क्योंकि उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। वी आर द प्रिजनर्स ऑफ आवर पास्ट। ठीक है? ये कहा जाता है ना, वी आर द प्रिजनर्स ऑफ आवर पास्ट। तो अगर जीएस 1 खराब हो गया तो आप हो गए प्रिजनर हो गए। अब जीएस 2 में भी खराब करोगे, फिर जीएस 3 में भी नहीं पढ़ोगे, 4 पे कहोगे अब क्या होना। अब 3 पेपर तो खराब हो ही गया, तो 4 क्या कर लेगा। ठीक है? ऐसे ही आप ऐसे में करोगे, ऐसे ही आप ऑप्शन में करोगे। तो मेरा क्या कहना था, मैंने बोला शुरुआत से कि पहला पेपर खराब नहीं जाना चाहिए जीएस 1। मतलब मेक श्योर, फिर उसके बाद अगले दिन का पहला पेपर खराब नहीं आना चाहिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज है जो आप फॉलो नहीं करते हैं, कैजुअली रहते हैं। मैं आपको एक्सप्लिसिटली बता रहा हूँ। ये आपको पता होगा, यू माइट बी नोइंग इट इम्प्लिसिटली, बट यू माइट नॉट बी कॉन्शियस अबाउट इट। यू आर कॉन्शियस, आप कॉन्शियस हो जाएंगे आप। मैंने बता दिया, नाउ विल बी वेरी कॉन्शियस दैट मेरे स्टार्टिंग पेपर खराब नहीं जाने हैं, मुझे उसको बेस्ट परफॉर्म करना है। क्योंकि अगर जीएस 1 अच्छा चला गया तो जीएस 2 भी अच्छा चला था, 3 भी 4 भी। वो मानते हैं कि सम क्वेश्चंस यू माइट नॉट, पर आप डिमोरलाइज नहीं होगे। पर जो जीएस 1 खराब होने की वजह से जो बाकी पेपर में इफेक्ट करेगा वो डिवास्टिंग होगा, राइट? सो यू गॉट दिस पॉइंट। तो इसको भी आप इम्प्लीमेंट करना, ठीक है? एंड लास्ट 2 वीक्स का स्ट्रेटजी बाद में बताऊंगा, राइट? लास्ट 2 वीक्स का फिर भी वेबिनार तो होता रहेगा। सी ऑलरेडी आई हैव टेकन, दिस इज द फिफ्थ वेबिनार, एंड आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस दैट 4 to 5 होगा। 4 to 5 हो चुका है, बट आई विल बी एडिंग सम मोर थिंग। ठीक है? आई वांट दैट कि मैं आपको और इसमें बेनिफिट दे सकूं, क्या क्या आप कर सकते हैं अच्छा सा। उसमें आई विल बी गिविंग यू वन मोर फुल वेबिनार ऑफ मोर स्ट्रेटजीज ऑफ ऐसे पेपर। आपको ऐसे वाला भी हमने बताया, तो आप काफी लोग का फोन आया, सर बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी, बहुत अच्छी हमको पता चला, नया नया चीज मिला। तो आई गिव सम मोर स्ट्रेटजीज फॉर द ऐसे पेपर, और बाकी जीएस 1 2 3 का भी, है ना? मैं इसके लिए ऑलरेडी स्टडी कर रहा हूँ, बिकॉज आई वांट टू गिव समथिंग न्यू आल्सो एंड व्हिच इज रेलेवेंट एज पर द करंट वे। ठीक है? रेलेवेंट भी होना चाहिए। अब इस साल के जो पेपर्स हैं, जो टॉपर्स हैं, ये सब भी मैं देखता रहता हूँ, एंड देन आई विल फाइंड आउट, एंड कुमुलेटिव नॉलेज मैं आपको दूंगा कि ये आप भी अपडेट कर लो। तो लाइक दिस वी आर अपडेटिंग इट एवरी ईयर। वी आर गिविंग द बेस्ट, कि हर साल थोड़ा हल्का हल्का चेंज होता रहता है यूपीएससी के मार्किंग पैटर्न में, हल्का हल्का। और वो हल्का हल्का भी हम अपडेट कर लेते हैं अपने वेबिनार से, सो दैट यू गेट द राइट अप्रोच इन एवरी ईयर। ठीक है? तो ये भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है? तो हम लोग को भी 2 3 क्लास और होंगे। और लास्ट 2 वीक्स की स्ट्रेटजी आपकी तैयारी पे डिपेंड करती है, एंड मेक श्योर दैट दिस मंथ, ये मंथ में आप मैक्सिमम चीज खत्म कर लो। ये अगस्त मंथ में, है ना? ट्राई टू फिनिश, ट्राई टू फिनिश ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मतलब जितना हो सके सब कर लो, क्योंकि जो फिर लास्ट 2 वीक्स होगा ना, उसके लिए यू हैव टू बी मोर फोकस्ड ऑन न्यू मटेरियल, जो भी जो नया पढ़ चुके हैं, जैसे करंट अफेयर्स, क्योंकि इसका रिकॉल थोड़ा सा फाइट रहता है ना? स्टैटिक का लास्ट वीक का रिवीजन रहता है इंपॉर्टेंट। ठीक है? इसको भी हम स्ट्रेटेजिकली बता देंगे, राइट? आई विल टेल दैट आल्सो। सो 2 वीक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सब कुछ, बिकॉज दिस लास्ट 2 वीक विल बी ए कॉन्फिडेंस बूस्टर। ठीक है? एंड दिस विल प्रोपेल योर मार्क्स आल्सो, कि आप इसमें सही स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। ठीक है? जो भी टेस्ट पेपर लगाने आप लगा लो, लास्ट वीक भी लगा सकते हो, लास्ट वीक में नहीं लगाना। लेकिन हाँ,
वो जो मैंने बोला राइटिंग प्रैक्टिस वो लास्ट डे तक करना है। जैसे कल एग्जाम है तो आज भी करना है। इसका क्या फायदा है? बिकॉज यू विल बी इन कांस्टेंट राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, यू विल बी इन कांस्टेंट राइटिंग प्रैक्टिस। उससे क्या होगा? आप लगातार लिख रहे होगे, यू विल बी कीप राइटिंग। सो आपका फ्लो बना रहेगा एग्जाम में। यू विल बी मेंटेनिंग योर फ्लो, यू विल बी मेंटेनिंग योर, है ना, दिस inertia will be reduced, inertia will be reduced, and basically creativity will be there continuously, है ना, और content enrichment will be there। ठीक है, तो बेसिकली इफ यू आर डूइंग दिस इट विल हेल्प यू लॉट। लास्ट डे तक करना है, फिर जब एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा फिर नहीं करना है। फिर मान लो बीच में छुट्टी मिले, अगर एक हफ्ते की छुट्टी है, अगर ऑप्शन है तो उसमें भी करना है, उसमें ऑप्शन करना है। ठीक है, इसका इसका हेल्प आपको एग्जाम में दिखेगा, प्रैक्टिकल दिखेगा, राइट। भले ही आप टेस्ट पेपर लगाना छोड़ देना है लास्ट वीक तक, लेकिन ये करते रहना है। ठीक है, क्योंकि टेस्ट पेपर विल कंज्यूम योर थ्री थ्री आवर्स, कर सकते हो। देखो ये पीटी वाला टेस्ट सीरीज नहीं है कि अब लास्ट वीक बंद कर देना है, ये मेंस का है। इट विल हेल्प यू डेफिनेटली। सो यू कैन डू इट इन द एंड ऑल्सो। लेकिन लास्ट वीक मेरा ये कहना है कि फोकस मोर ऑन रिवाइजिंग एवरीथिंग एंड दिस, जो 3 क्वेश्चन का जो 1 घंटे का जो है, जो आपको एवरी डे करना है वो आप कंटिन्यू करना है। कल एग्जाम में तो आज तक करना है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा, राइट। सो वी हैव डिस्कस दिस। I today I wanted to keep the session short because already 2-2 घंटे 3-3 घंटे 2-2 घंटे प्लस हम लोग कर रहे हैं इसका। तो मोस्ट ऑफ थिंग आई हैव टोल्ड यू। कुछ एक रह गया था तो मैंने ये बता दिया आपको, ताकि दिस इज द फ्रॉम नाउ यू कैन कंटिन्यू डूइंग दिस, फॉलोइंग स्ट्रेटजी। टुमारो ऑनवर्ड्स कर लेना या 1-2 दिन में कर लेना। डोंट डोंट यू नो कीप कीप वेटिंग। द टाइम हैज कम फॉर दिस टू स्टार्ट। और किसी का टाइम आ जाता है तो उसको रोकना ठीक नहीं है, नहीं तो फिर वो आपका टाइम खराब कर देगा आगे चल के, राइट। So you start doing this as of maybe tomorrow or day tomorrow. You choose your do it. Okay. Yeah. Now I will almost मेरा तो हो गया. I've done. फिर next week we'll tell something more about this GS 1 2 3 4 and essay, and the more strategies for the optional as well as the ऑप्शनल। आप चाहो तो पढ़ते रहो। एक अभी अपने जो टाइम को डिवाइड करने का जो प्रोसेस है वो अराउंड 40% एंड 60% के हिसाब से भी कर सकते हो। मतलब 40% विल बी ऑप्शनल एंड पार्थ गुप्ता आ रहे हैं, एंड 60% विल बी द योर जीएस पार्ट। ठीक है, तो ये दिस यू कैन डू इट, ऑप्शनल एंड जीएस पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू फॉलो दिस एंड कोशिश करो कि इसको आप ऐसे डिवाइड करके यू कंज्यूम योर टाइम एंड डोंट थिंक दैट कि पहले एक चीज को खत्म करेंगे दूसरा करेंगे। साइमल्टेनियसली यू कैन डू बोथ थिंग्स, बिकॉज हमारी जो मेमोरी है ना वो बेसिकली जो आता है, जैसे ये आपका ब्रेन के मान लीजिए कंपार्टमेंट है, मान लीजिए एक आपका कंपार्टमेंट ऑप्शनल का है और एक जीएस का है मान लीजिए, राइट। दीज आर द स्टोरेज प्रोसेस। जब वो ऑप्शनल पढ़ते हैं तो वो ऑप्शनल जाएगा, जीएस पढ़ते हैं जीएस में जाता है। लेकिन आप सारे दिन जब ऑप्शनल पढ़ते हैं तो वो कितना इसमें जाएगा, इसका भी एक वो हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है। द ब्रेन बिकम्स मोनोटोनस एंड इट विल बी, है ना, स्टॉपिंग द फर्दर रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन। वो उसको कम एब्जॉर्ब करता है। बट व्हेन यू डू ऑप्शनल देन यू डू जीएस आल्सो, तो ये भी चलता रहता है, उसका कंपार्टमेंट अलग है। तो जीएस विल आल्सो गेट, है ना, स्टोर्ड, फिर ऑप्शनल विल आल्सो गेट स्टोर्ड। तो ये दोनों इसमें फुल्ली फंक्शन करते हैं। नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप द इंफॉर्मेशन, स्टॉप भी नहीं होता और पूरा अच्छे से वो कंटिन्यू रहता है। ठीक है, so that is the benefit of studying 2 or more subjects when you are doing for the यूपीएससी। एक ही पढ़ोगे तो वो मोनोटोनस हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। एंड दिस इज अ कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी दैट सिमिलर items actually are stored slowly। सिमिलर आइटम्स जो है ना उसमें बेसिकली क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। अगर वो डिसिमिलर आइटम है, जैसे हियर इन द केस जीएसएन ऑप्शनल है, तो दे आर डिसिमिलर, तो उसमें यू कैन स्टोर इट वेरी इजिली और वो इंटरेस्टिंग भी रहता है, मोनोटोनस नहीं रहता है। ठीक है, so those who have joined right now after 1 hour, I have I have to inform you that we are done with the class, and these are the last things which are discussing. You may get the I'll try to get and give you the recording of it.
ठीक है, if it is done we'll check out in the last, uh, yeah, after it is done. But try to be on time next time, don't come in the last hour, because already Anika madam had told that she is not going to allow anyone after some 15 minutes. So I think that is the better thing, because you are coming late, that means you are losing, and you in the middle of it you won't be having much benefit. Okay. So guys, so I completed my thing today. First 1 hour, I have told you that I will discuss it completely in 1 hour. Now I want to take your questions. If you have any questions, those who are writing mails and those who are not writing mails also, they have also got the strategy for next year. They can start thinking on these lines also. And you can ask me any question, any question which you want to ask. As of now, you can ask me. And if you do not have any question, you may go, or you can just wait and listen to other questions. Maybe it will help you. Okay. So please, you can ask any question. Okay, if no question is there, that's okay, fine. Hmm. Everybody is having, हाँ सब कुछ पता ही है आप लोग को, बता ही दिया गया है. Okay then, thanks a lot. We'll close this next week तो again. अभी 14. Yes. सर गुड इवनिंग सर. Good सर evening. एक्चुअली आई हैव टू आस्क सर, ये जो आपने 40 और 60 वाला बताया सर, किसके बारे में? ये जो 40% ऑप्शनल एंड 60% जीएस सर, ये जो नेक्स्ट ईयर जो अपियर हो रहे हैं फॉर 2026 सर, ये उनके लिए भी सेम ही है ना? हाँ हाँ ठीक है, दोनों के लिए सेम ही है, जस्ट फॉर because you see the optional also will consume some of your time, and 40% for optional is fine, and 60% of time for GS, because GS में you have to read many things, right? तो इसलिए ये कर सकते हो, इवन फॉर दोज हु आर राइटिंग फॉर नेक्स्ट ईयर, दे कैन रिड्यूस द ऑप्शनल टाइम टू 30% एंड 70% फॉर जीएस, बट मेक श्योर दैट कि योर ऑप्शनल टाइम शुड नॉट लेस देन 3 आवर्स, क्योंकि 3 आवर से कम में फिर यू विल बी हैविंग वेरी लिटिल टाइम. So it should not be less than 3 hours for optional. Rest time you can devote for the GS paper. Okay. ओके ओके सर. ठीक है. ओके. Okay. Any other query? The question? Okay then. सर हाँ. ऑप्शनल में सर एक बार के लिए टाइम लग रहा है, क्योंकि जो ऑप्शनल है वो न्यूमेरिकल है, लेकिन जब वो एक बार कंसोलिडेट हो जाता है ना, मतलब जैसे मान लो मैंने 10 दिन का पढ़ा है तो मैं वो आराम से 5-6 दिन के लिए रिवाइज कर सकता हूँ पूरा, क्योंकि न्यूमेरिकल है. फिर बस एक बार करने के बाद क्वेश्चन आंसर फिर यही देखना रहता है कि अच्छा इस क्वेश्चन में ऐसा करना, इस क्वेश्चन में ऐसे करना. तो सर उसमें दिक्कत नहीं रहना अगर 20 तारीख तक भी ऑप्शनल हो जाए, लेकिन ढंग से हो जाए तो सही है ना? हाँ, लेकिन साइड बाय साइड यू हैव टू टेक जीएस आल्सो. डोंट लीव इट ठीक है. कंप्लीटली. हाँ Right. सर. Sir, सर अगर part जीएस का you have missed the 1 hour this one सर. webinar. It is very important. You missed it. You see the video. Okay. ओके सर. ओके सर. अगली बार से नहीं करना मिस. एक्चुअली सर लेट में मेरे को लगा आपने सुबह डाल देते हो ना, जिस दिन मैसेज होता है, तो मैंने अभी जैसे पता चला I planned it. या थोड़ा लेट प्लान किया था, मुझे हाँ कल ही सर, डालना हाँ था. But see, सर, every मेरा भी every one एक्चुअली of you. मिस हो गया सर. एक्चुअली मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया था. मेरे एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं नहीं ज्वाइन कर पाया सर. इमरजेंसी आ गई थी, अदरवाइज सर मिल जाता सर. ओके, कोई बात नहीं, you'll see the video. और फिर कोई डाउट हो तो पूछो, मुझसे कॉल करके पूछ लेना. एंड एवरी संडे वी विल बी हैविंग वेबिनार 9 PM. मान के चलो कि हो गई होगा, नहीं होगा तो बस 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले देख लेना. कैंसिल लिखा होगा तो कैंसिल होगा, लेकिन मोस्टली होगा. सिर्फ एक ही बार मैंने कैंसिल किया लास्ट वीक, राइट. हाँ, उसके बाद लगातार हुआ है, अगली बार भी होगा. ठीक है. उस दिन क्या 15 अगस्त तो नहीं है कमिंग संडे को, और है तो भी क्या हुआ, हो जाएगा. ठीक है. हर घर हर घर में झंडा फैला लेना. उसके बाद शाम को ही होना वेबिनार, यू कैन डू इट. 15 अगस्त मंडे को है. ठीक है. ठीक है. ओके. सो ओके, डन. एनी अदर थिंग? कोई बात नहीं. पार्थ एंड ऑल एवरीवन, यू विल गेट रिकॉर्डिंग क्लासेस, बट ये ठीक है, अगली बार से कर लेना. एंड एक दिन पहले मैं डालू ना डालू, 9 को कंफर्म रहेगा, मतलब रात को 9 बजे संडे.
आई राइट डाउन इन द पोस्ट आल्सो कि कंफर्म है, नहीं होगा देन यू विल बी इन्फॉर्म्ड, मैं लिख दूंगा, बट मोस्टली मान के चलो हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें कोई अनाउंस करने की बात नहीं बची, इट्स बाय डिफॉल्ट। ठीक है, एंड द सेम गोज फॉर द एसे। अनिका मैडम विल टेक एट 8 पीएम ऑन वेडनेसडे। इफ शी इज नॉट टेकिंग देन शी विल अनाउंस कि आज मेरी क्लास, जैसे लास्ट ईयर उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, गच्चा कर दिया, नहीं लिया क्लास। ठीक है, तो नेक्स्ट ये वेडनेसडे होपफुली वो लेंगी, तो इट विल बी मतलब अंडरस्टूड कि ये क्लास होनी है। ठीक है, तो उसमें कोई ये नहीं कि अनाउंसमेंट मिला नहीं मिला, सो बी ऑन टाइम। ओके देन